A very fresh good morning to all of you, my dear ninth class. Here is a new topic and new book also. This is chapter number 1. What is democracy? Why democracy? And the book is Civics, Political Science. So this is new edition. So kindly remind of the chapter name and number. Earlier it was second chapter, but now first chapter is removed. So chapter second, what is democracy? Where democracy is now a chapter number 1. This is according to syllabus by CBSE. So very interesting topic. Kindly pay attention to class and then make notes of it, and you really enjoy the topic democracy, because India is a democratic country. You live in a democratic country. So what is democracy? Why we need democracy? What is the merits of democracy? What are the demerits of democracy? These all questions are to be raised in the chapter. So let's begin. First of question is, what is democracy? ऑलरेडी क्वेश्चन भी है ये एक तरह का क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी वो लेटर ऑन जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानियाँ दी होंगी, स्टोरी के जरिए आप कुछ चीज़ों का बेसिक प्लॉट समझ सकते हैं। ओके, so we have common feature of democratic government, non-democratic government. Let me clear about democratic and non-democratic. Democratic system is for the people, by the people, to the people. The people are the ultimately the main power. And non-democratic where the basic rights of freedom is not to be enforced, and mainly dictatorship or conservatism order or religious leader is a supreme of that country. But we are a democratic country. Yes. Why define democracy? Here is a story, Mary and Lingdo madam. This is a conversation between a student and a teacher. You can easily read it if you want to. If you want to read it, then please read it. I want to discuss about the conversation between the class teacher and the student. I simply go to the topic. A simple definition. Yes. So here is a definition. Democracy is a form of government in which the rulers elected by peoples. The most simple definition. If we, if I am asking a question, define democracy, then you have to answer like that. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का, सरकार चुनने का, गवर्नमेंट को बनाने का, जिसमें जो रूलर्स होते हैं ना, मतलब जो अब रूल कर रहा है, आप मिनिस्टर्स को देखते हैं, सीएम को देखते हैं, पीएम को देखते हैं, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखते हैं, वो ना इलेक्टेड होते हैं पीपुल्स के जरिए। और वही वो भी फर्स्टली पीपल ही हैं, इस कंट्री के सिटीज़न हैं, तो वो पीपल आप अपने ही लोगों में से अपने लिए चुनते हैं। वो अब्राहम लिंकन ने इसीलिए बोला है, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। सो वेरी क्लियर डेफिनेशन. So let's explain another topic. देयर इज़ अ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट. कुछ इस तरह की चीज़ें आपको इसमें आएंगी समझने के लिए, बट बेसिकली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इस पूरी बुक में आपको कई बार स्टोरी मिलेंगी. स्टोरी एक प्लॉट के जरिए होंगी, और उस स्टोरी के जरिए ही आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि वो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है. आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं. इसमें जो मेन जो भी होगा रिवीजन का, मेन जो भी चीज़ें होंगी, किस तरह क्वेश्चन मिडल ऑफ द बुक आ सकते हैं, बुक के बीच से, चैप्टर के बीच से आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, मैच दी फॉलोइंग की तरह, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, वन लाइन क्वेश्चन में आ सकता है. और आप इस बात का ध्यान रखें, एक बार मैं अगेन आपको एक पैटर्न समझाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि फिर इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं, वन वर्ड की तरह भी आएगा. मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको वन वर्ड में ही लिखना है आपको. वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वन सेंटेंस और वन लाइन में ही आंसर देना है पॉसिबली. ठीक है,
तो इस पूरे चैप्टर्स में यहाँ पे जो कहानियाँ होती हैं, इसमें कुछ डिक्टर पिनोर चिले की कहानी है, सऊदी अरेबिया की कहानी है। आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। चिली जो डिक्टेटर पिनोचे की कहानी है, उसने उससे पहले वहाँ पे अपनी कंट्री में एक प्रेसिडेंट हुए थे, आई थिंक मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो लास्ट चैप्टर में था। उनका मैसेकेयर करवाया, हत्याकांड करवाया, उसके बाद वहाँ का डिक्टेटर बना। आप म्यांमार में भी देखते हैं, म्यांमार भी अब देखते हैं आप इजीली आज भी एक मिलिट्री रूल की तरह ही वहाँ पे है। इस पूरे चैप्टर में शायद कहीं पे पाकिस्तान की भी कहानी का प्लॉट आएगा। आप देखेंगे पाकिस्तानी एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली इस तरह के यहाँ पे प्लॉट होंगे। उन चीज़ों को मुझे ज़्यादा बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम मेनली उन चीज़ों को समझेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये आप कार्टून समझते हैं, कार्टून बहुत कुछ कहते हैं। ये स्टीफन पेरी का है थाईलैंड में, और कुछ ध्यान दें, कार्टून हमेशा डार्क शेड में बहुत सारी बातें कह देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सोल्जर्स हैं, और सोल्जर्स को आप देखें तो सोल्जर्स ना पीछे गन लिए हुए हैं और वो डेमोक्रेसी को ऊपर उठा रहे हैं, बट डेमोक्रेसी में ना एम पे रेड है नीचे। तो एम फॉर क्या हुआ? एम फॉर हुआ मिलिट्री, यानी कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी को ना करके मिलिट्री को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये सैनिक ही हैं। तो एक तरह से ये शो ऑफ भी है कि डेमोक्रेसी है ऊपरी तौर पे, बट एक्चुअली में तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, एज लाइक एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, म्यांमार, समटाइम्स इन थाईलैंड ऑल्सो। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखें, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। राइट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लॉन्ग में भी आप चाहें तो उनके नोट्स बनाएं, इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें अच्छे से अपनी नोटबुक में। बट यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक चीज़ मैं आपको ये और से बता दूँ क्लियरली, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही नहीं आएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड में आंसर देना, मैच द फॉलोइंग, कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो आप देखते हैं, आपने पहले ही डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो आप कई सारे क्वेश्चंस मन में उठते हैं आपके इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें आया द रूलर, रूलर जो वर्ड आया था, हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन, वो कौन होते हैं। आपने फिर इलेक्टेड की बात की, तो इलेक्टेड में इलेक्शन क्या, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस डेमोक्रेटिक में हेल्ड होते हैं। फिर आपने बाय द पीपल की बात की थी, तो ये बाय द पीपल कौन है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इसको आपको यहाँ पे मिलेंगे फीचर्स डेमोक्रेसी में, और उनको 1 बाय 1 ही आपको लिखना है। एक्चुअली फीचर्स डेमोक्रेसी में जब मैं नंबर 1, 2, 3 आपको बताऊंगा, वो फीचर्स आपको राइट भी करनी है, वो आपको बेटरली समझने भी हैं। सो एंड फाइनली फिर आपको समझना है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यस, दिस इज़ योर फर्स्ट फीचर, काइंडली रिमाइंडेड, दिस इज़ योर फर्स्ट फीचर, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। आप सभी लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक में जब आप इलेक्टेड करते हैं रूलर्स को, यानी कि उन लोगों को, उसके बाद रूलर बनते हैं, तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो लीडर्स ही लेते हैं। ये फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें आप कई सारी चीज़ें देखेंगे, तो इसमें ना हर फीचर, जैसे फर्स्ट फीचर है, फीचर से पहले एक प्लॉट किया जाएगा एक किसी कंट्री की स्टोरी के जरिए कि वहाँ क्या चीज़ें हो रही थी। इसमें 99 की कहानी है पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, वो मिलिट्री जनरल थे वहाँ पे, उन्होंने नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को ओवरटेक किया और वहाँ पे मिलिट्री रूल बनाया, डिक्टेटर बन गए। लार्जली 2007 के बाद वो वहाँ से हटे, काफ़ी साल के बाद, और उन्हीं के टाइम पे 1999 में करगिल वॉर हुआ था इंडिया में। फिर यहाँ पे 2002 में रेफरेंडम ले आए और उन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया। पाकिस्तान में मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबको जो इन्होंने मतलब बहुत कमज़ोर कर दिया, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी वीक हो गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। और ये एक कार्टून है, कार्टून में कहता है ये सीरिया है, नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म मेंबर ऑफ ऑल बात पार्टी, इज दैट क्लियर। तो अल बात जो पार्टी है वो पार्टी है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी को एक देवी की तरह दिखाया है, बेचारी न्याय तराजू लेके एंट्री चाह रही है सीरिया में, बट सीरिया के ये जो आप सोल्जर्स को देख रहे हैं वो कह रहे हैं आप ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने से मतलब कि आपको हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग चलना होगा। कार्टून बहुत कुछ कहता है, कार्टून हमेशा डार्क शेड में सारी चीज़ें बोल देता है, ठीक है। ये इस तरह का एक दूसरा कार्टून है कि डेमोक्रेसी है तो सही, बट डेमोक्रेसी हमारे हाथों में है, उससे पहले मिलिट्री रूल्स की तरह। ये पाकिस्तान और उनकी सिचुएशंस पे बहुत बार दिखाता है।
तो एक्चुअल में ये जो पूरा प्लॉट है ना, आपको ऊपर बताया, ये बताया, ये पूरा जनरल परवेज मुशर्रफ की कहानी है, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई कि उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी को एबोलिश किया और अपने डिक्टेटरशिप को लागू किया। तो वो फर्स्ट फीचर में फिर क्या आता है, जो फर्स्ट पॉइंट था ऊपर आपने देखा था ना, डिसीजंस मेक बाय द रूलर्स, तो उसमें ये पॉइंट आपको राइट करना है, ये है। अब यहाँ से ये पॉइंट आता है, वो क्या है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी फाइनल डिसीजंस होते हैं दे वर बी कैरिड बाय द पीपल हु इलेक्टेड बाय अस, मतलब जो हम जिन्हें लोग चुनते हैं वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो पीएम है, सीएम है स्टेट में, या जो और लोग हैं वही लोग डिसीजन लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ओके, और ये पूरी कहानी है वहाँ पे फ्रॉड की, लीगल फ्रेमवर्क की, पाकिस्तान की। आप चाहें तो उसको आप रीड कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको सिर्फ समझाया है, उसका आपको बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं समझना है, ठीक है। एंड द सेकेंड, दिस इज सेकेंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये आप चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स था, उसमें भी आप देख चुके हैं किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं रहा। ये पूरी कहानी पाकिस्तान की जो आपने यहाँ देखी है ना, ये उसी को लेके है। अब यहाँ चाइना का और कुछ इस तरह कंपनी का एग्जाम्पल आएगा, बार बार हर बार नए नए एग्जाम्पल दिए जाएंगे, इन कंट्री में आपको सिस्टम कैसे ये पता चलेंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कभी फाइनली फ्रीली और फेयरली इलेक्शंस होने नहीं दिए, वो तानाशाह हो गए थे और मिलिट्री रूल काबिज हो गया था पूरे पाकिस्तान पे। आज भी अगर कहें इमरान खान वहाँ के पीएम है, इलेक्टेड हैं, बट वो इलेक्टेड नहीं है, वो फंडेड हैं आईएसआई की तरफ से, और पाकिस्तान आर्मी का एक दबाव है उनके ऊपर, वरना कोई इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं पिछले 2-2.5 साल से। तो सेकंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना में क्या होता है, इलेक्शंस होते तो हैं, पार्लियामेंट जो वहाँ की है वो है कोंगो रेनमिन दुहाई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये चाइनीज़ मैंडरिन भाषा है, कोंगो रेनमिन दाई देहुई, और जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है उसको इंग्लिश में वहाँ बोलते हैं। मेनली क्या है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, आप ध्यान रखें इस बात को। और ये जो वहाँ की नेशनल पीपल कांग्रेस है, पार्लियामेंट की तरह है, वहाँ की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। 3000 मेंबर्स हैं पूरी चाइना में, और यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं इलेक्टेड होते हैं आर्मी के जरिए। आर्मी का रोल क्यों है, देखा आपने चाइना में अकेले नहीं, पाकिस्तान में देखा, चाइना में देखा, बट इंडिया में आर्मी का इस तरह से आपको कहीं रोल नहीं होगा कि वो इलेक्टेड जो हैं आर्मी के जरिए इलेक्ट होते हो मेंबर्स असेंबली में, इंडिया में नहीं है। ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो आर्मी के मेंबर को अप्रूव चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि नहीं चाहती है कि वो लड़े। ओनली दोज हु मेंबर्स आर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 एंड 3। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, या वो जो और भी छोटी छोटी 8 पार्टियाँ हैं वहाँ पे, 8 पार्टीज़ हैं, उनके मेंबर हैं, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये वहाँ पे रूल हैं इस तरह के, डिक्टेटरशिप है बेटा एक तरह से वहाँ पे भी। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, चाहे वहाँ कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, क्योंकि वहाँ पे बेटा वन पार्टी डोमिनेशन या वन पार्टी ही सिस्टम है, अपने यहाँ ही सिस्टम नहीं है। ओके, अब ये यहाँ पे कुछ मैक्सिको कहानी है। ओके, ये लेटर ऑन वैसी ही है जैसे कि चाइना की है। तो मेनली बात ये आती है, इस पूरी कहानी को, ये प्लॉट पूरा समझने के बाद जो सेकंड पॉइंट आपका आता है वो ये है, बेसिकली यहाँ से है, वो ये है कि सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपके वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होने ही चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जहाँ पे ये भी होना चाहिए कि जो लोग पावर में हैं, अगर साफ तौर पे कहा जाए तो वो भी वोटिंग के जरिए अपने इलेक्शंस को लूज़ कर सकते हैं। इतना फेयरली इलेक्शन माना जाए, वो ही डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। ठीक है, आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चाइना में नहीं है, चाइना में फेयरली है ही नहीं। वहाँ जो आर्मी भी सिलेक्ट करने को कहेगी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होगा सिर्फ वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आप इंडिपेंडेंट निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर वन इम्पॉर्टेंट फीचर नंबर 3, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आप इस 3 वर्ड से बहुत कुछ क्लियरली समझ रहे होंगे। यानी हमारे डेमोक्रेसी में एक पर्सन का एक ही वोट होता है और उसकी एक ही वैल्यू होती है। अगर आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया में, या पीएम हैं, आईएएस अधिकारी हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं,
धोनी है, सानिया मिर्जा हैं, कुछ भी हैं, या भिखारी भी हैं, या मजदूर हैं, किसान हैं, आपको एक ही पर्सन की तरह, एक ही वोट की तरह और एक ही वैल्यू की तरह ही माना जाएगा। सो दिस इज पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कहते हैं कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं था वोट करने का। आप सोच सकते हैं। बेसिकली अब कुछ चीज़ें वहाँ पे लिबरल हो रही हैं और कुछ इंप्रूवमेंट वुमेन्स के लिए किए जा रहे हैं। जैसे वुमेन्स अब वहाँ टैक्सी चलाने लगी हैं, वुमेन्स अब वहाँ पार्लियामेंट में आने लगी हैं। वोट देने का अधिकार तो मिला था लेकिन पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती हैं। और वहाँ पे आप और भी कुछ चीज़ें हैं। आप पायलट नहीं बन सकते। आई थिंक वहाँ पे 1-2 पायलट ऐसे सुनने में आए हैं जो लोग अब ऐसे हो रहे हैं। आप वहाँ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। फुली डेमोक्रेटिक नहीं है सऊदी अरेबिया। एस्टोनिया एक कंट्री है और फिजी भी एक कंट्री। एस्टोनिया क्या है, यूरोप में है। वहाँ क्या होता है, हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल इन विच वे दैट पीपल बिलोंग टू रशिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया में क्या है, अगर आप रशिया से हैं, मतलब जैसे इंडिया में भी तो बहुत सारे लोग आके रहने लगे हैं ना, अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, फिजी, युगांडा, पाकिस्तान, नेपाल, मतलब बहुत साल पहले भी है। 1977 के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए। ऐसे एस्टोनिया में क्या, अगर आप रशियन कम्युनिटी के हैं, जब एस्टोनिया बन गया था उससे पहले रशिया के बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे होंगे, तो वहाँ पे उन्हें राइट टू वोट नहीं है। इस तरह के हालात हैं एस्टोनिया में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फिजी में क्या है, फिजी का एग्जाम्पल क्या है, तो जो 1 वोट 1 पर्सन वैल्यू की बात है वो एस्टोनिया में लागू नहीं होती है। सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। क्यों? कि जब वहाँ 1 पर्सन माना ही नहीं है वुमेन्स को 2015 तक, तो वहाँ ये वैल्यू थी ही नहीं वुमेन्स के लिए। सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन द ऑफ एन इंडियन फिजियन। फिजी में क्या है, जो वहाँ का नेटिव पर्सन था, इंडिजीनियस, तो वहीं का था, उसकी वोट की वैल्यू इंडियन फिजियन। एक्चुअली क्या है, फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, फिजी एक आइलैंड कंट्री है, बहुत टूरिज़्म डेवलप है वहाँ पे इंडियंस ही मोस्ट ऑफ हैं, हिंदूज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो इंडिया से वहाँ पे लोग ब्रिटिश लोग यहाँ से इंडियंस पीपल्स को ले गए थे लेबर के तौर पे, कॉफ़ी, गन्ने और इन सब की खेती के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन फिजियन भी हैं, तो उनकी वोट की वैल्यू ना वहाँ के जो इंडिजिनियस फिजियन हैं उनसे कम है। यानी कि अगर इस चीज़ को बात करें तो फिजी में ये लागू नहीं होता है, बट इंडिया में ये लागू होता है। लाइन में लग के आप वोट दे सकते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है। 1 वोट है, 1 पर्सन है और वो आपके लिए बराबर वैल्यू रखता है। तो वो फाइनली क्या कहता है, दिस गिव्स द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड फीचर क्या देता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, एडल्ट मतलब जिनकी 18+ एज हो जाती है, 18 कवर कर लेते हैं, मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। उनका एक वोट माना जाएगा और उस वोट की एक ही वैल्यू मानी जाएगी। ये इस डेमोक्रेसी का एक फीचर है। इंडिया में ये अच्छे से लागू होता है। देखिए, आप देख रहे होंगे ये कुछ कार्टून को, अगर आप समझें, ये जॉन ट्रेवर का है और ये यहाँ पे उसका सोर्स दिया है, आई लाइक डिड बेटर देन आई वाज द वन विद द 1 वोट, और ये वोट हेयर, ये कुछ पहनावे से अगर आप समझें, ये हिजाब पहने हैं और ये टोपी लगाए, शायद सऊदी अरेबिया की बात कर रहा है, सद्दाम हुसैन शायद, यहाँ ये इराक की बात हो रही है। ओके, ये रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, फीचर नंबर 4। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, लॉ यानी कानून, रूल का लॉ होना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो अधिकार दिए गए लोगों को उनकी रिस्पेक्ट भी करना होगा। जैसे कि एक आम नागरिक है, अगर उससे कोई क्राइम होता है, डीएल नहीं है, गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस उससे मारपीट नहीं करेगी। पुलिस को अधिकार सिर्फ इतना है कि वो उसको पकड़ेंगे, उसका चालान कर देंगे। आपका राइट ये है कि आपको अपना वकील मिलना चाहिए, तो आप अपना वकील ले सकते हैं, आप अपने लिए क्राइम के अगेंस्ट लड़ सकते हैं अगर आप किसी ने गलत आरोप लगाया है। तो हमारे यहाँ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से लॉ को रूल किया जाता है। हाँ, ये बात कहने में आसान है, इट ईजी, बट मैनी ऑफ केसेस आर इन्फ्लुएंसेस विद वेल्थ, मनी एंड पावर। आप देखेंगे कि बहुत सारे केस हमारे यहाँ, जो बड़े बड़े पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोई भी अपने आसपास आप लोगों को देखिए, वो रूल्स को बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं और आप देखते हैं कि उनको सज़ा नहीं मिलती है। ये हमारे लिए थोड़ा सा शेमफुल है। मैंने आपसे कहा था हर एक्सपेक्ट पे, हर फीचर पे आपको एक नई कहानी मिलेगी। अब जिम्बाब्वे की कहानी है, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ पे एक प्रेसिडेंट बने थे, उनकी ये पार्टी थी, उनके अंडर में 1918 में वो इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन इन्होंने बहुत सालों तक वहाँ राज किया।
2007 तक रहे हैं वो, 2017 तक, सॉरी, बहुत सालों तक रहे हैं। और वो एज ए डिक्टेटर बन गए थे वहाँ पे। उन्होंने बहुत सारे लॉ को अपने अगेंस्ट ना करके अपने फेवर में कर लिया था। वुमेंस के लिए और ह्यूमन के राइट्स के लिए वहाँ पे कोई लॉ ही नहीं थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं था। ये पूरी कहानी यहाँ पे दी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हैरेस किया जाता था, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट के खिलाफ गवर्नमेंट इलीगल तौर तरीके दे, मतलब इलीगल बोल देती थी। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई दिक्कत है, अगर आप जंतर मंतर पे दिल्ली में बैठे हैं, अगर आप जिम्बाब्वे में हैं, तो वहाँ के रॉबर्ट मुगाबे कहेंगे कि तो इलीगल है, गलत कर रहे हो, चलो घर जाओ। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी, बट इंडिया में इस तरह से नहीं है। फिर यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ लिखा है कि एक बच्चे की तरह कार्टून दिखाया है, याहू, गूगल, सिस्को और ऊपर जो है बम। आप उसको देखेंगे तो वो आपको एज अ फ्राइटन करने के तरीके से दिखा रहा है। आपको वहाँ पे कोई इस तरह से रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट नहीं है, उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। डू नो डेविल, यानी आप डू नो ईविल, कोई इस तरह काम ना कीजिए, ठीक है। ये कार्टून है। तो बेसिकली जो फोर्थ फीचर है आपका, वो क्या कहता है? फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स, अपने कानून को जो है वो अपनी जो उसकी लिमिटेशंस उसमें चलाती है, शासन को, बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, और सिटीजन्स राइट्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो दीज आर द फीचर्स। अगर आप समरी करना चाहें तो यहाँ से समरी आप देख सकते हैं, इसकी समरी है। समरी में ये उसके ब्लू जो डॉट्स हैं ये उसके पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। elected by people take all the major decisions, elections offer choice and free fair elections, choice of opportunity available on the people of equal basis, जो equal vote की बात थी। और फाइनली ये फोर्थ वाला पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। ये इसके फीचर्स हैं, आप ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, और जो ऊपर क्वेश्चन था, ये पैराग्राफ था, वहाँ से भी उसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए थी। नेक्स्ट टॉपिक होगा वाई डेमोक्रेसी, वो हम नेक्स्ट डे यानी कल पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से चीज़ों को देखें, समझें। जो छोटी छोटी उसमें एग्जांपल्स थे, रॉबर्ट मुगाबे, परवेज मुशर्रफ, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ये मैंने आपको बताए भी हैं शॉर्ट स्टोरी में। आप उनको एक बार रीड करें, मे भी वहाँ से आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आपके PD1 में। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे। एंड कोई बात हो तो आप मुझे दोपहर के बाद मैसेज कॉल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कीजिए क्योंकि क्लास चल रहा होता है। थैंक यू।